wonderful greetings to all of you, my dearly beloved brothers and sisters, sons and daughters. How are you all today? मेरे प्यारे भाइयों बहनों बेटे बेटियों आप सबको नमस्कार। आप सब कैसे हैं आज? I trust all of you are well and good. मैं विश्वास करता हूं कि आप सब बिल्कुल ठीक और अच्छे हैं। So let's continue our lesson today about the subject, the kingdom of God coming within you, which we have been studying for the last 3 weeks. पिछले 3 हफ्ते से हम सीख रहे थे कि कैसे परमेश्वर का राज्य हमारे अंदर वास करता है। आइए इसके बारे में और आगे हम सीखें। And they had one baby in their hand, and both of them claimed that the baby was theirs. उनके हाथ में एक बच्चा था और दोनों ने कहा कि ये बच्चा उनका था। Both women gave birth to babies on the same day. दोनों स्त्रियों ने एक ही दिन बच्चों को जन्म दिया। One woman's baby died while the other baby survived. एक स्त्री का जो बच्चा था वो मर गया लेकिन दूसरे का बच्चा जीवित रह गया। The mother of the dead baby stole the baby that is living while her mother was sleeping. वो माँ जिसका बच्चा मर गया था उसने उस बच्चे को चुरा लिया जो जिंदा था जब उसकी माँ सो रही थी। And she put the dead baby beside the sleeping mother. और सोने वाली माँ के बगल में उसने मरे हुए बच्चों को रख दिया। So when the mother woke up, she saw her baby was dead. तो जब माँ उठी तो उसने देखा कि उसका बच्चा मरा हुआ है। But she knew this is not her baby. लेकिन वो जानती थी कि ये बच्चा उसका नहीं है। But the other woman claimed, no, this is your baby that died. लेकिन दूसरी स्त्री ने ऐसे कहा कि नहीं, जो मरा है वो तुम्हारा बच्चा है। So this matter went before King Solomon. तो ये जो बात है उसे राजा सुलेमान के पास ले जाया गया। Solomon heard their case. सुलेमान ने इनकी बातों को सुना and he pondered quite deeply. बहुत गहराई से सोचने लगा। And then he came with a solution. फिर एक उपाय लेकर आया। Since both women are claiming this baby as theirs, क्योंकि दोनों स्त्रियां कह रही हैं कि ये बच्चा उनका है, so the king ordered the soldier to cut the baby into 2 and give one half to one woman, another half to another woman. तो राजा ने अपने सैनिक से कहा कि इस बच्चे का 2 भाग कर दो और एक भाग को एक स्त्री को दे दो और दूसरे भाग को दूसरी स्त्री को दे दो। When the false mother heard that, she said, "Yes, hallelujah! Kill the baby and give me one half." तो झूठी माँ ने जब ये सुना तो उन्होंने कहा हाँ हालेलुया, इस बच्चे को मार दो और आधे हिस्से को मुझे दे दो। But the true mother fell at King Solomon's feet and cried to him, "Please don't kill the baby. Give the baby to her." जो सच्ची माँ है वो राजा सुलेमान के कदमों पर गिर गई और रोने लगी और कहने लगी कि बच्चे को मत मारो, इसे उस स्त्री को ही दे दो। She says, "King, let my child live." उसने कहा राजा मेरे बच्चे को जीने दो। So King Solomon then knew who is the true mother. तो सुलेमान राजा समझ गए कि कौन असली माँ है। The next thing we find is that the kingdom of God is holy. दूसरी बात जो हम देखते हैं वो ये है कि परमेश्वर का जो राज्य है वो पवित्र है। In Leviticus chapter 11 verse 44 and chapter 20 verse 7, God says, "I am holy." लेविवस्ता 11 के 44 में और 20 के 7 में परमेश्वर कहते हैं कि मैं पवित्र हूँ। So because God is holy, His kingdom is holy. और क्योंकि परमेश्वर पवित्र है उनका राज्य भी पवित्र है। So a person who wants to be anointed as the Melchizedek priesthood, तो वो इंसान जो मेल्किजेदेक के याजकीय अभिषेक को चाहता है, then you too must be holy. तो आपको भी पवित्र होना है। That is why the Bible says in 1 Peter chapter 1 verse 15 and 16, "As I am holy, be you holy." इसीलिए बाइबल पहला पत्रस पहला अध्याय उसका 15 और 16वें वचन में कहता है कि जिस प्रकार मैं पवित्र हूँ वैसे तुम भी पवित्र बनो। The Bible tells us very clearly in the book of Ecclesiastes, how can two walk together if they are not agreed? सबोपदेश की पुस्तक में बाइबल बहुत ही साफ रूप से हमें बताता है कि अगर 2 जन सहमत ना हो तो वो एक साथ कैसे चल सकते हैं। According to this scripture, if we want to walk with God, we must have His characteristics.
इस वचन के अनुसार अगर हमें परमेश्वर के साथ चलना है तो परमेश्वर की विशेषताएं हमारे जीवन में भी पाई जानी चाहिए। So, because God is holy, you too must be holy. तो क्योंकि परमेश्वर पवित्र है, आपको भी पवित्र होना है। And when the kingdom of holiness comes inside you, holiness will flow out from you, which will then convict others of sin. जब वो पवित्र राज आपके अंदर आके बसने लगेगा तो आपके अंदर से पवित्रता बाहर बहने लगेगा और उस पवित्रता के द्वारा जो लोग पाप में हैं वो सब मन फिराने के लिए चले आएंगे। In Luke chapter 5, we read of an incident. लूका 5 में हम एक घटना को पढ़ते हैं। The Lord Jesus Christ used the boat of Peter to preach to the people. प्रभु यीशु मसीह ने पतरस का जो नाव था उसका इस्तेमाल किया ताकि लोगों को सुसमाचार प्रचार कर सके। Then the Lord wanted to reward Peter for allowing him to use his boat. और क्योंकि परमेश्वर ने उसका नाव का इस्तेमाल किया, परमेश्वर उसके बदले में उसे एक इनाम देना चाहते थे। And the Lord worked a miracle by having Peter catch a net full of fishes. और परमेश्वर ने एक चमत्कार किया जिसके कारण पतरस जाल भर के मछली पकड़ा। When Peter saw this net full of fishes, he looked at the Lord Jesus and he said, "Oh Lord, I'm an unclean man." तो जब पतरस ने ये जाल भर के मछलियों को देखा तो उसने प्रभु यीशु मसीह को देखकर कहा, हे प्रभु, मैं एक अपवित्र इंसान हूँ। He also cried in Luke chapter 5 verse 8 says, "Lord, I'm a sinful man, go away from me." लूका 5 के 8 में लिखा है कि वो ऐसे भी रोया कि प्रभु, मैं एक पापी मनुष्य हूँ, मुझसे दूर चले जाइए। The presence of the Lord, the holiness of the Lord Jesus convicted Peter of his own sin. प्रभु यीशु मसीह की पवित्रता ने पतरस को उसके अपने अपराध, उसके अपने पाप को दर्शाया। In the same manner, when the kingdom of God's holiness floods you, it will convict others of their sin. इसी प्रकार जब परमेश्वर के राज्य की पवित्रता आपके अंदर से उमड़ने लगेगी तो दूसरे उनके पाप को आपके द्वारा देख पाएंगे। Once the man of God, Smith Wigglesworth, was traveling on a train to go to another city to preach. एक बार परमेश्वर का दास स्मिथ रिगल्सवर्थ रेलगाड़ी में जा रहा था एक और शहर ताकि परमेश्वर के वचन को बांट सके। And as it was his habit, he took out his Bible and he began to read it. और उनके आदत के अनुसार उन्होंने अपना बाइबल खोला और उसे पढ़ने लगे। While everybody else were talking, smoking or doing other stuff, he was just quietly reading his Bible. जब बाकी सब लोग बात कर रहे थे, धूमपान कर रहे थे, ये सब कर रहे थे, वो चुपचाप बैठकर अपने बाइबल को पढ़ रहे थे। Suddenly, everybody in the compartment dropped to their knees. एकदम उस कंपार्टमेंट में बैठे सभी लोग घुटनों पर आ गए। And the men told Smith Wigglesworth, "Sir, you are convicting us of sin." और वो लोग स्मिथ विगल्सवर्थ को कह रहे थे कि आपके कारण हमारे पाप हमें नजर आ रहे हैं। So, Brother Wigglesworth was very surprised because he did not preach to them. तो भाई रिगल्सवर्थ बहुत ही चकित हो गए क्योंकि उन्होंने अभी तो प्रचार भी नहीं किया था। He then asked them, "How am I convicting you of sin?" तो उन्होंने उनसे पूछा कि मैं कैसे आपको आपके पाप दिखा रहा हूँ। And all the men said, "Sir, we see the light of God shining on your face." तो सभी लोगों ने उनसे कहा, श्रीमान, हम आपके चेहरे में परमेश्वर की रोशनी को चमकते हुए देख रहे हैं। That is the kingdom of God's holiness within you. जब परमेश्वर के राज्य की महिमा आपके अंदर आ जाती है तो ऐसा ही होता है। Finally, the kingdom of God within you is power. अंत में परमेश्वर का राज्य जब आपके अंदर आ जाता है तो सामर्थ होता है। The Apostle Paul says the kingdom of God is not eating and drinking, but in the demonstration of power. प्रेरित पौलुस कहते हैं कि परमेश्वर का राज्य सिर्फ खाने और पीने का नहीं, लेकिन परमेश्वर के सामर्थ को दर्शाना है। And we read in Matthew chapter 4 verse 23 to 25 that the Lord Jesus Christ went preaching the gospel of the kingdom and demonstrating the power of God. हम मत्ती 4 उसके 23 से 25वें वचन में पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह परमेश्वर के राज्य का जो सुसमाचार है उसे प्रचार कर रहे थे और अपने सामर्थ को दिखा रहे थे। Wherever the kingdom of God comes, it demonstrates
or explodes in power. जहाँ पर भी परमेश्वर का राज आता है वहाँ परमेश्वर का सामर्थ बहुतायत से नजर आता है। In Exodus chapter 19, we read the kingdom of God coming down on Mount Sinai. निर्गमन 19 में हम पढ़ते हैं किस प्रकार परमेश्वर का जो सामर्थ है वो सिनै के पर्वत पर आ जाता है। One entire nation of Israelites saw the glory of God with their naked eyes. पूरा इज़राइल का राज्य ने परमेश्वर के महिमा को अपने आँखों से देखा। And there was a deafening thunder and lightning that manifested when the glory of God came down. जब परमेश्वर का सामर्थ उतरा तो बहुत ही जोरदार बिजली और गर्जन की आवाज सुनाई दी। And the entire Sinai mountain began to shake and tremble when the glory of God came and touched on the mountain. जब परमेश्वर की महिमा उस पर्वत पर उतरी तो पूरा पहाड़ हिलने लगा और कांपने लगा। That is the kingdom of power. ये सामर्थ का राज्य है। And when the kingdom of God power comes within you, you will begin to demonstrate the kingdom's power in this world and set the captives free. जब परमेश्वर के राज्य का सामर्थ हमारे अंदर उतरेगा तो हमारे द्वारा बहुत ही सामर्थ प्रकट होगा और इसके द्वारा जितने भी बंधनों में हैं उन सब के बंधन टूट जाएंगे। From the beginning of the ministry of the Lord Jesus Christ right up to the ministry of the apostles in the book of Acts, we read them demonstrating the power of God because they preached the gospel of the kingdom. यीशु मसीह की सेवकाई से लेकर सारे प्रेरितों की सेवकाई को जब हम पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि परमेश्वर के राज्य का जो सामर्थ है उसको वो प्रकट करते हैं क्योंकि उनके अंदर परमेश्वर का सामर्थ वास करता है और वो परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार करते हैं। Because the kingdom of God is power. When you preach about the kingdom, the power of God manifests. क्योंकि परमेश्वर का राज्य सामर्थ है, जब आप उस राज्य के बारे में प्रचार करते हैं तो वो जो सामर्थ है वो प्रकट होता है। In Matthew chapter 12 verse 28 we read that the Lord Jesus Christ demonstrated the power of God's kingdom by casting out demons. मत्ती 12 के 28 में हम पढ़ते हैं कि प्रभु यीशु मसीह ने दुष्टात्माओं को भगाकर परमेश्वर के राज्य के सामर्थ को प्रकट किया। The Lord Jesus Christ looking at all those doubting Pharisees and said this, if I by the finger of God cast out Satan, then know for sure that the kingdom of God is in your midst. प्रभु यीशु मसीह ने उन सारे शक करने वाले फरीसियों को कहा कि अगर मैं परमेश्वर के सामर्थ से शैतान को भगा सकता हूँ तो ये जान लो कि परमेश्वर का राज्य हमारे बीच में है। And all throughout the ministry of the Lord Jesus Christ, he went about doing good everywhere, casting out demons and healing the sick. प्रभु यीशु मसीह की सेवकाई को हम अगर गौर से देखें तो हम देखते हैं कि वो सारी जगह में अच्छे काम कर रहे थे, दुष्टात्माओं को भगा रहे थे और रोगियों को चंगा कर रहे थे। You too can work the works of God if the kingdom of God comes within you. आप भी परमेश्वर की क्रियाओं को कर सकते हैं अगर परमेश्वर का राज आपके अंदर वास करेगा। So let's summarize what we have been studying for the last 4 weeks now. आइए पिछले 4 हफ्तों से हम जो भी सीख रहे हैं उसे एक बार फिर ध्यान से देखें। The kingdom of God will be birthed inside you. परमेश्वर का राज्य का जन्म आपके अंदर होगा And that kingdom of God is light. और वो परमेश्वर का राज रोशनी है। It is peace, love and joy. वो शांति, प्रेम और आनंद है। It's righteousness. वो धार्मिकता है। It is holy वो पवित्र है and is full of power. और वो सामर्थ से भरपूर है। When you walk in the Melchizedek anointing, जब आप मेल्किजेदेक के अभिषेक में चलेंगे all these attributes of the kingdom of God will begin to manifest in your life. परमेश्वर के राज्य की ये सारी बातें आपके जीवन में प्रकट होने लगेंगी। So what must you do to receive them? तो इसे पाने के लिए हमें क्या करना है? Every priest is consecrated for service unto God. हर एक याजक को परमेश्वर की सेवकाई के लिए पवित्र किया जाता है, अर्पित किया जाता है। So every day you kneel down before the presence of God. हर दिन आपको परमेश्वर की उपस्थिति में घुटने टेकने हैं। Ask the Holy Spirit to cleanse you and consecrate you.
पवित्र आत्मा से कहिए कि आपको धोए और शुद्ध करके अर्पित करें Then walk righteously before God. और परमेश्वर की उपस्थिति में धार्मिकता की चाल चलें And the kingdom of God will be birthed inside you. और परमेश्वर के राज्य का जन्म आपके अंदर होगा। Amen. आमीन। God bless you all till we meet again in the next lesson. अगले पाठ में जब हम मिलेंगे तब तक प्रभु आप सबको आशीषित रखे।